Everyone. I am Chunati Arora from NJ Wealth. I welcome you all to this session today, a very interesting session. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रेंटल इनकम के ऑल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर आज हमारा सेशन होने वाला है, राइट। सो इंडिया में जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम लोग रेंटल इनकम के लिए जो प्राइमरी हमारा सोर्स है वो हम लोग बैंक एफडीज वगैरह में पैसा डालते हैं, जहाँ पे आज के डेट पे थोड़े से रिटर्न्स इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे। तो उसी का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड्स भी ऑफर करते हैं, जहाँ पे आपको एक रेगुलर इनकम का ऑप्शन भी मिलता है और काफ़ी अट्रैक्टिव टैक्स इफेक्टिव ऑप्शन है ये। तो आज का सेशन लेने के लिए आज हमारे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड से मिस्टर अमित ग्रोवर हैं, राइट, जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड में ट्रेनिंग हेड हैं। अमित ग्रोवर सर जो हैं वो 15 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं एंड इन्होंने डीएसपी से पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी जैसे बैंक्स में वेल्थ मैनेजमेंट में काम किया हुआ है। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में डीएसपी के अलावा इन्होंने सुंदरम एंड आईडीएफसी जैसी एएमसीज में भी काम किया हुआ है। So this was a little about him on a professional background basis. इनका जो एजुकेशन है, सो ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड विथ एन एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड ही इज़ ऑल्सो सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट। सो काफ़ी अच्छा इनका बैकग्राउंड है वेल्थ मैनेजमेंट में एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको वेल्थ मैनेजमेंट में। सो ओवर टू यू अमित सर। आई होप कि आज का सेशन में सबको बहुत मज़ा आएगा। सो ओवर टू यू अमित सर। Thank you, Chunoti. Thanks for a lovely introduction. But honestly, जो हम बातें करने वाले हैं, all the principles we are going to talk today about money, required for that. All you require is certain common sense, certain basic principles to understand about money, and you will realize that once you understand those basic principles, how you can make your life stress-free. The biggest stress in a person's life is actually financial stress. We all of us know how having simple investment ideas, having simple goals, you can actually make your life stress-free. Today, if you look at majority of the Indians, they are obsessed with two asset classes. First is real estate, and second is gold, and obviously third is fixed deposits. India has got maximum amount of fixed deposits. In fact, almost 150 lakh crores of money is lying in saving account, current account, and fixed deposits. India as a country is the only country in the world where people are obsessed with gold. You go in any country in the world, ideally you will see hardly any people who are obsessed with gold. And thirdly, physical asset, which is real estate. Majority of the people believe, I wish I have real estate. I wish I get rental incomes all my life. That's the desire of majority of the people. And we all know the stress which goes over there. Let's try to find out various interesting alternatives so that you can achieve your financial goals, you can get better returns, and it can be more stress-free in terms of management. Bhargav, can you share the presentation, please? So let's try to explore smart alternatives to rental incomes. Today's agenda is two objectives. It's human that we all want a second alternative income, which is a rental income, and also retirement is the most important goal which every investor ideally should focus on. In fact, आपके जितने भी goals है life में, whether it's your children's education, their marriage, possibly आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, bank will give you a loan, but retirement is the only financial goal for which no bank, no financial institution will give you a loan. A very interesting statistics. If you look at India's mortality, मतलब Indians average कितनी उम्र तक रहते हैं? 1980 में, 1980 में, the average mortality of India was 48 years. As we speak right now, it's touching around 70. Thanks to medical advancement, thanks to healthcare, thanks to good awareness, most likely we'll have a long retirement. Most of us will live till the age of 80, 85, 90, and even 95. A good 25 to 30 years retirement. So ideally, having a good steady income
in your retirement age is very important. And majority Indians love think, I wish I have real estate assets which can give me rent all my life. Let's try to find out alternatives. How can you have a second income during your working life, and how you can have a good pension plan as an alternative all your life? Let us try to understand typically India's psychology towards real estate and the fascination towards real estate. I will not go back into time. I'll just talk about the last 20 years. First, let's talk about the periods in 2000. India's fascination was towards buying a shop, because at that time there was an ATM boom. Everybody thought, I wish I have a shop. I lease it to a bank, and bank puts an ATM over there, and I get rental incomes all my life. Then there was an obsession for buying properties. People were randomly buying properties in the cities, in tier 1, then they went to tier 2, then they moved to tier 3, and then they kept on buying real estate properties wherever they could find land. Today, there is also a fascination towards buying shops in malls. And today, the latest fascination which majority of the Indians have is to buy warehousing, because today warehousing has become a big thing. Thanks to Amazon, Flipkart, Mintras of the world, they are buying big warehouses, and everybody believes, I wish I have a warehouse. I can lease it to Amazon or a Flipkart or a Mintra, and I will get good rental incomes. India has been loving physical assets. Let's try to understand what are the challenges with physical asset, and is there an alternative? So let's try to understand, first of all, the challenges in real estate asset. First of all, India is the only country in the world where the rental yields, जहाँ पे आपको rent जो मिलता है as percentage of the property, the percentage is the lowest. I'll just share you some interesting data points. दिल्ली में 2.5% है, 2.5%. Bangalore it's around 3.5%. Mumbai it's around 2.5%. Ahmedabad around 3%. Chennai around 3%. Hyderabad 3.2%. Pune 2.65%. And Kolkata, which is the highest, which is 3.4%. India is the only country where the rental yields are very low, and the interest rates to buy a real estate is the highest. If you look at across the world, the interest rates are very low. So अगर आपको एक housing loan लेना है, तो interest rates are very low and the rental yields are very high. It makes sense, right? अगर आप एक घर खरीद रहे हो, आप चाहोगे लोएस्ट से लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिले और हाईएस्ट से हाईएस्ट रेंटल यील्ड मिल जाए उसका, तभी एक इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में दोनों ही हाई है. ये तो अभी होम लोन रेट्स थोड़े कम हुए हैं, बट दे आर फ्लोटिंग होम लोन रेट्स. एज इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप, हम फिर देखेंगे होम लोन पे इंटरेस्ट रेट 8, 9, 10, 11% चला जाएगा और रेंटल यील्ड 1.5-2%. इतना बड़ा डिफरेंस है. सो आइडियली रियल एस्टेट still doesn't make a great investment. Also look at challenges which is there in real estate. So the biggest challenge which is there in real estate, and I say the biggest challenge is liquidity. Let's say कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, आप चाहते हो आपके बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करें, मे बी इन यूरोप, मे बी समवेयर इन यूएस, और आपको पैसे की जरूरत है फॉर देयर हायर एजुकेशन. You cannot sell a kitchen or a balcony for their higher education. आप एक partial redemption नहीं कर सकते. घर बेचना है तो पूरा घर बेचना पड़ेगा, आप partial redemption नहीं कर सकते. आपको अगर बिजनेस के लिए भी बीच में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप अपना हॉल या बेडरूम नहीं बेच सकते, आपको अपना पूरा घर बेचना पड़ेगा. That's the first point. Second point is there is a lot of oversight which is required. लोग खरीद तो लेते हैं घर, पर उनको ये रियलाइज नहीं होता कि हर टाइम रेंट पे चढ़ाने के लिए दे हैव टू लुक एट लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. इनको बार बार एक ब्रोकर ढूंढना पड़ता है, बार बार उनको एक पर्सन ढूंढना पड़ता है जो रेंट पे उनका घर खरीदे, रेंट एग्रीमेंट्स बनाए, और काफी बार प्रॉपर्टीज रेंट पे नहीं चढ़ती. थर्ड पॉइंट इज पीपल फॉरगेट द टैक्सेशन ऑफ रियल एस्टेट. इफ योर रियल एस्टेट, इफ यू सेल इट लेस देन 3 years, वॉट एवर कैपिटल गेन्स यू मेक आपकी इनकम में ऐड हो जाता है. And most of us come in the highest tax bracket, 30% tax भरना पड़ता है, and more than that, and even if it's more than 3 years, it's 20% tax with indexation. So taxation is very high. और जो आपको रेंट मिलता है वो रेंट टैक्स फ्री नहीं है. Whatever rent you get added to your income, उस पे आपको
आपकी इनकम अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 30% टैक्स आपको रेंट पे भी पे करना पड़ता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट, इसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिस्क। ये प्रॉपर्टी ऐसी चीज है कि जहां पे आपका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, मे बी आपने 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अनलाइक स्टॉक्स जहां पे आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है अक्रॉस मेनी स्टॉक्स, यहां पे आपकी सारी पूंजी एक ही प्रॉपर्टी में है। अब प्रॉब्लम यह है, अगर अनफॉर्चुनेटली आपने तो प्रॉपर्टी बना दी और साथ में एक मेट्रो स्टेशन आ गया या एक ब्रिज आ गया या उसके साथ में एक कंपनी आ गई जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है और मे बी वहां पे ट्रैफिक जैम होता है, बिकॉज योर प्रॉपर्टी इज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यू आर ऑलवेज स्टक ऑल योर लाइफ। There are so many people who have bought shops. Unfortunately, उस जगहों पे there have been certain challenges and the shops are remaining vacant for a longer period of time. This is called as idiosyncratic risk. Now, let's try to understand the alternatives. Is there an alternative? Is there a solution जहां पे आपको ये सारे challenges नहीं होंगे and you can still achieve your financial goals in a very simple fashion? Let's try to understand and think, and I'll take few examples over here. यहां पे मैं 3 लोगों के उदाहरण दूंगा। एक फर्स्ट उदाहरण ले रहा हूं अबाउट अ पर्सन कॉल्ड एज अब्दुल। अब्दुल का लॉजिक बहुत सिंपल है। अब्दुल ने सोचा कि मुझे सेकंड इनकम चाहिए। ही वाज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। उसे लगा मुझे एक सेकंड इनकम चाहिए। उसके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स थे। उसके पास 50 लाख रुपए थे। उसने सोचा 2001 में, विच इज इन 2001, he could have bought a property worth 50 लाख रुपीस, और ही थॉट कि क्या मैं इस पैसे को एक बैलेंस फंड में डाल सकता हूं। व्हाट इज द बैलेंस फंड? बैलेंस फंड इन सिंपल टर्म्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। अप्रोक्सीमेटली 75% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसेट क्लास हैविंग इक्विटी टैक्सेशन। अब्दुल ने बहुत सिंपल सोचा, अगर मैं 50 लाख इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अब्दुल्स एग्जांपल कि 10 साल में क्या रिटर्न्स बने एंड वाज ही एबल टू अचीव हिज गोल्स। उसको हर महीने 6% की इनकम चाहिए थी। 50 लाख के ऊपर उसको साल का 6% चाहिए था ऑन अ मंथली बेसिस। सो ऑब्वियसली अब्दुल डिड दिस इन्वेस्टमेंट इन 2001। जब उसने 50 लाख इन्वेस्ट किया और 2010 में जब वो अपना प्रॉपर्टी का वैल्यू, मैंने से प्रॉपर्टी, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड प्रॉपर्टी फॉर एंड बैलेंस फंड, जब उसने अपना म्यूचुअल फंड और बैलेंस फंड का पैसा देखा, उसको रियलाइज हुआ कि 50 लाख का वैल्यू हो गया है 2.86 करोड़। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी या बैलेंस फंड का जो पैसा है 6 गुना बढ़ गया है। 50 लाख ऑलमोस्ट 3 करोड़ टच कर रहा है। 6 गुना, 6 टाइम्स योर मनी हैज ग्रोन। बट एट द सेम टाइम आपने हर महीने 6% के हिसाब से आपको एक सेकेंड इनकम, या उसको आप कह सकते हो रेंटल इनकम भी मिली। हाउ ही अब्दुल गॉट इट? अब्दुल ने एक सिंपल ट्रांजैक्शन दिया था इन म्यूचुअल फंड को। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है, एट द सेम टाइम आपके पैसे में से, आपके कॉर्पस में से 6% ऑन एनुअल बेसिस आपका पैसा निकल रहा है। सो यू आर गेटिंग इनकम ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम योर मनी इज ग्रोइंग। इन 10 years अब्दुल एक्चुअली उनका पैसा 6 गुना बढ़ गया। बट ये जर्नी सिंपल नहीं थी। देयर वर पीरियड्स जहां पे 2 साल तक अब्दुल के पैसे बने भी नहीं। 2008 से लेके 2010 2 साल का ऐसा दौर आया था जब अब्दुल का पैसा ग्रो बिल्कुल नहीं हुआ। बीच में एक ऐसा दौर भी आया था विच एवरीबडी नोज, इन द पीरियड ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। ये फंड 40%, 40% से ये फंड गिर भी गया था। बट सिंस अब्दुल स्टेड इन्वेस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 10 years, then he made this amazing returns. अभी आप कहोगे कि ये तो 10 साल बहुत ज्यादा होता है। थिंक अबाउट इट इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। मैं कंपेयर कर रहा हूं रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट में 10 साल तो बहुत बेसिक होता है। पीपल 10 साल इज द मिनिमम टेन्योर विच पीपल टॉक अबाउट रियल एस्टेट। इनफैक्ट रियल एस्टेट में पीपल टॉक जनरेशन, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल की बात करते हैं। आई हैव जस्ट टेकन 10 years एज एन एग्जाम्पल। यू मेड वेल्थ, एट द सेम टाइम आपको मंथली इनकम भी मिल गई। बट यहां पे आप बोलोगे ये एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया है, बट आपने ऊपर एक पॉइंट लिखा है, इट्स अ बेस्ट केस सिनेरियो। मुझे बेस्ट केस सिनेरियो नहीं सुनना, मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो बताइए। यस, दैट इज अ वेरी लॉजिकल वे, बिकॉज लाइफ में कभी भी बेस्ट केस सिनेरियो पे कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए।
आपका डिसीजन वर्स्ट के सिनेरियो को भी देख के होना चाहिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शेखर। शेखर का अनफॉर्चुनेटली उसके 10 साल बेस्ट नहीं थे, बिकॉज उसके जो 10 साल में जो इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, जो डीएसपी का बैलेंस फंड है, उसने वर्स्ट रिटर्न दिए, लोएस्ट रिटर्न दिए। लेट्स सी क्या वर्स्ट रिटर्न्स भी ठीक ठाक थे कि नहीं थे। सो अनफॉर्चुनेटली शेखर ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की 2010 में अप्रैल में, और आप सबको पेंडेमिक का टाइम याद होगा जब मार्केट 36% गिर गई थी। मैंने वो लोएस्ट पॉइंट लिया है, मैंने वो 10 साल लिए हैं जो वर्स्ट रहे हैं बैलेंस फंड के लिए। अगर शेखर ने 50 लाख रुपया डाला होता, ओके, 2010 में, और पेंडेमिक का जब बॉटम था, जब मार्केट सबसे लोएस्ट लेवल पे थी 23 मार्च 2020 को, उस समय वो 50 लाख का वैल्यू हो गया होता 67 lakhs। तो वर्स्ट 10 years में भी स्टिल शेखर मेड 50 lakhs का 67 lakhs हो गया। एट द सेम टाइम शेखर गॉट अ 6% साल का एनुअल कैश फ्लोज, उसको आप रेंटल कह लो या उसको इनकम कह लो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू उसको 6% एवरी ईयर, 6% एवरी ईयर मींस 6% डिवाइड बाय 12, मतलब 0.5% ऑफ द अमाउंट ही गॉट एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 10 years। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखते हो और 10 साल का टाइम होराइजन देते हो, योर कैपिटल स्टिल वेंट अप and at the same time you got a second income for 10 years। Now I'll give you a third example। A third example is of Ravi। रवि एक बहुत ही लॉजिकल सुलझा हुआ पर्सन है। वो बोलता है लाइफ इज नीदर अबाउट द बेस्ट केस सिनेरियो, नीदर लाइफ इज अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। लाइफ बेस्ट और वर्स्ट के बीच में होती है, बीच में होती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिचुएशंस व्हिच कैन हैपन इन लाइफ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल 10 साल के होराइजन में बैलेंस फंड में कितना पैसा बन जाता है। अज्यूम करता हूं कि मेरे को 6% हर साल एक तरीके से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी करूं तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा। सबसे पहले रवि अपने आप से पूछता है कि ये इक्विटी का मतलब क्या होता है, बिकॉज रिटर्न्स इज अ आउटकम। रवि ये जानने की कोशिश करता है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है और रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है। रियल एस्टेट हम सब जानते हैं इज बाइंग बेसिकली फिजिकल एसेट। रवि अपने आप से पूछ रहा है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस ऊपर क्यों जाते हैं, व्हाट ड्राइव्स रियल एस्टेट प्राइसेस इन द लॉन्ग टर्म। जब रवि सोचता है वो समझ आता है उसको कि लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट प्राइसेस को जो ड्राइव करता है वो है रेंट्स। अगर कोई प्रॉपर्टी के या वेयर हाउस के या शॉप के या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस के रेंट्स बढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ेगा। So what drives real estate prices in the long term? It is basically rental income। Now रवि समझने की कोशिश करता है इक्विटी को ड्राइव क्या करता है। रवि समझने की कोशिश करता है, वो समझता है इक्विटी मींस बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस। बिजनेसेस का लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव कौन करता है, अर्निंग्स करता है। एज लॉन्ग एज द अर्निंग्स, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर ग्रोइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। अब रवि समझने की कोशिश करता है लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स बढ़ते हैं ज्यादा या रेंट्स बढ़ते हैं ज्यादा, और एक सिंपल गणित करने से रवि को एक बात समझ आ जाती है, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स ज्यादा बढ़ते हैं रेंट्स के मुकाबले में। सो इन लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट गिव्स यू फार सुपीरियर रिटर्न्स देन रियल एस्टेट। बट ये तो होगी लॉजिक की बात। अब रवि सोचता है मुझे सिनेरियोज देखने हैं, वेरियस सिनेरियोज देखने हैं, बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो के बीच में। तो रवि बोलता है मुझे इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, जो आपका डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड विच इज अ बैलेंस फंड, मुझे उसके 10 साल के रिटर्न्स बताइए ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स। इन 25 सालों में, इन 20 सालों में, 25 सालों में मुझे वेरियस सिनेरियोज बताइए कि 10 साल के पीरियड में, इसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स, 10 साल के पीरियड में क्या रेंज रही है ऑफ रिटर्न्स। मैक्सिमम तो हमने देख लिया जो टिपिकली राज को मिला 23%, और मिनिमम भी हमने देख लिया 6.2% रिटर्न मिल गया जब आपको 6% हर महीने आपको विड्रॉल भी मिल गई ऑन एवरेज। एवरेज का मतलब यह होता है कि आपने जितने भी रिटर्न थे उसका एवरेज लिया, एवरेज 15.4% हो गया। काफी टाइम आपको उससे ज्यादा मिला, काफी टाइम उससे कम भी मिला, बट ऑन एवरेज 15.4 बना। नाउ इन दिस केस
रवि इज वेरी कॉन्फिडेंट, बोलता है वर्स्ट केस सिनेरियो भी बहुत अच्छा है, बेस्ट केस सिनेरियो हो गया तो मैं बहुत लकी हूं, कुछ नहीं हुआ, एवरेज भी बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी सिनेरियो हो जाता है इसके बीच में, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी, मेरे को 6% का विड्रॉल भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम कोई भी रेंज आउटकम्स होंगी, इन एवरी सिनेरियो आई एम वेरी हैप्पी। रवि इक्विटी मार्केट को और समझने की कोशिश करता है। रवि ये जानता है व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी मींस इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस, और रवि समझता है कि बिजनेस में द ओनर ऑफ द कंपनी मेक्स मोर मनी देन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट कंपनी। रवि ये भी जानता है मैं जितना भी चीजें लाइफ में खर्चा करता हूं, किसी का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मेरे पीछे दीवार है, एशियन पेंट कमा रहा है, नेरोलैक कमा रहा है, बर्जर पेंट कमा रहा है। जब मेरे ऊपर पंखा है तो हैवेल्स कमा रहा है, एंकर कमा रहा है। चप्पल पहनता हूं तो रिलैक्सो कमाता है, बाटा कमाता है। When I'm going to a bank, HDFC is earning money, ICICI is making money, Axis, SBI is making money. When I buy medicines, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो Sun Pharma, Lupin, Ipca Laboratories, Dr. Reddy's are making money. When I use a mobile phone, I know telecom companies like Reliance Jio is making money. When I go for shopping, I know DMart and Shopper Stop is making money. When I take a metro, I know L&T is making money over there. When I take a two-wheeler, I know Maruti, Tata Motors, Bajaj, Hero Motorcorp और TVS और a Tata Motors is making money. तो रवि बहुत सिंपल जानता है कि एट द एंड ऑफ द डे businesses will always make money from a long term perspective. India is a developing country. India is a country with a population of around 136 crores. India is a young country, a country where the consumption is very strong, a country which is high on aspiration, and a capitalist country. So at the very simple terms, over a longer period of time, India's growth story looks good. Companies will make profit, earnings will be there. In the long term, I will make money. But Ravi also knows a very interesting point कि markets in the short term works on sentiments, emotions. कभी इमोशंस अच्छे होते हैं, सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, कभी सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, मार्केट नीचे जाती है, कभी सेंटिमेंट्स बोरिंग होते हैं तो मार्केट 2-3 साल कुछ नहीं करती। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड माई होराइजन हैज टू बी 10 years प्लस। अगर मैं इसको 10 साल देता हूं लाइक रियल एस्टेट, तो मेरे रिटर्न्स भी बन जाएंगे, मुझे कैश फ्लो भी बन जाएगा और मेरे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। The interesting point is when you invest into companies versus buying a real estate, आपको बार बार जाना पड़ता है रियल एस्टेट देखने के लिए कि मेरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ठीक है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, आपको बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। द ब्यूटी ऑफ इक्विटी इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम सब लोग बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की। इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देयर इज नो वर्क एट ऑल। जब मैं रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता हूं या रिलायंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, रिलायंस HDFC बैंक में इन्वेस्ट करता हूं या ICICI बैंक में इन्वेस्ट करता हूं, मैं बेसिकली वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत वो कंपनी कर रही है, मेहनत वहां के एम्प्लॉयज कर रहे हैं, उनके CEO कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी, एंड सिंस आई एम अ पार्ट ओनर, मेरे भी पैसे बन जाते हैं, नॉट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, नॉट वर्किंग एट ऑल, बिना मेहनत किए, just because I'm a part owner in that company, over a longer period of time, even I make money. But you have to be very careful over here. I have seen a lot of investors बोलते हैं इक्विटी में रिटर्न बन जाते हैं तो वो रैंडमली कोई भी स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑल्सो ऑफ इक्विटी मार्केट। आई एम श्योर आप बहुत सारी मूवीज देखते हो, आप नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन प्राइम पे, हॉटस्टार पे हजारों मूवीज देखते हो। आपने एक बात रियलाइज किया होगा, सारी मूवीज या सारी सीरीज, नॉट एवरी मूवी एंड एवरी सीरीज इज एक्चुअली अ हिट। बहुत सारी मूवीज फेल हो जाती हैं, बहुत सारी मूवीज एवरेज रिटर्न्स देती हैं, वेरी फ्यू मूवीज आर वेरी सक्सेसफुल, एंड दिस हैपेंस विद स्टॉक मार्केट्स आल्सो। नॉट ऑल कंपनीज आर सक्सेसफुल, देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच फेल, many companies which give average returns, many companies which give you moderate returns, very few companies give you very high returns. And that's the very important principle when you are investing into stocks. सब लोग जो धंधा कर रहे हैं सब प्रॉफिटेबल नहीं है, सारी दुकानें जो चल रही हैं सब प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ दुकानें बहुत पैसा बनाती है, कुछ दुकानें पैसा कम बनाती हैं। And that's what brings a principle of diversification. When you put your money into an equity mutual fund or a balanced fund, which is a combination of equity and debt, your money is diversified. Your money is not into one stock, but around 50 to 60 stocks, not one sectors, but around 10 to 12 sectors. आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपका रिस्क मैनेज हो जाता है।
That's a very important principle in risk management. And lastly, it's managed by a fund manager and a team of analysts जो मिलके जिनका होल एंड सोल जॉब आपके लिए काम करना है. द प्रॉब्लम इज स्टॉक खरीदना हमें लगता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. मेरा 8 साल का बच्चा है, वो भी डीमैट अकाउंट करके स्टॉक खरीद सकता है. स्टॉक बाइंग, इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी इज अ वेरी लोनली जॉब. आपको कंपनी की बैलेंस शीट मैनेजमेंट पढ़नी पड़ती है, उसका सेक्टर एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद डिसाइड करना पड़ता है. इट्स अ लोनली जॉब. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है सिर्फ स्टॉक खरीदना इज बेसिकली कॉल्ड एज equity market, which is absolutely wrong. That's why using a mutual fund route and investing into a balanced fund as an alternative to investing into real estate for rental incomes is an absolute great idea, because इसमें आपके रिटर्न्स भी बन जाते हैं, आपको मेंटेनेंस का भी चिंता नहीं, आपको रेंटल इनकम्स भी मिल रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर इनटू साइकोलॉजी. सुनने में अभी भी सब सही लग रहा है, बट अभी भी दिमाग तो ये कहता है नहीं यार, घर तो होना चाहिए. यस, आई एम नॉट अगेंस्ट होम. मैं होम के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं घर के अगेंस्ट नहीं हूं. हर एक को आशियाना चाहिए. इवन अ स्मॉल इंसेक्ट टू अ बर्ड टू एवरी लिविंग क्रिएचर, एवरीबडी वांट्स अ प्लेस टू स्टे. एक एक पक्षी भी चाहता है कि मेरा एक घोंसला हो जहां पे मैं अंडे दे सकता हूं. आई वांट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, which is your house, don't consider it to be an investment. Consider it to be a home, a place where you can stay with your family, a place where you will get mental security, a place like जैसे आप कार खरीदते हो या कोई भी एसेट खरीदते हो, don't consider it to be an investment, consider it to be a place where you are staying. My idea is where people get obsessed with physical assets. एक घर तो है रहने के लिए, अब उनको एक और प्रॉपर्टी चाहिए इन अ डिफरेंट प्लेस फॉर रेंटल इनकम, एक शॉप भी चाहिए, उसके बाद एक वेयरहाउस भी चाहिए, और सारा का सारा पैसा उनको रियल एस्टेट में डालना है. माय प्रॉब्लम विद दैट. नाउ सिमरन को अपना एक थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. यस, आपने अपना घर खरीद लिया है, अभी आपके पास जो अदर इनकम है उसको इन्वेस्ट करो. बट सिमरन का मानना यह है कि नहीं, मुझे जो दिखता है ना, मुझे वो एसेट चाहिए. आई फील वेरी हैप्पी जब मैं ट्रैवल करती हूं तो मुझे दिखता है कि मेरा एक और फिजिकल हाउस है. आई फील वेरी गुड. आई थिंक दैट इज इन्वेस्टमेंट. You will have to change your perspective. Let me tell you my perspective. All my money, besides having a house, all my money is into equity mutual fund. Now, my thought is very simple. Do you think that ideally I don't have physical assets? In my mind, I think I have physical assets. Why? Because when I look at my portfolio has got ICICI Bank, HDFC Bank, Tata Steel, DMart, and list of other companies. जब भी मैं आईसीआईसीआई बैंक को देखता हूं ना, मैं बोलता हूं ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो ये ब्रांच है ना और ये कॉर्पोरेट ऑफिस है ना, ये मेरा है. बिकॉज आई एम अ पार्ट शेयर होल्डर इन द कंपनी. भले बहुत छोटा है, बट यस, आई एम अ पार्ट ओनर इन दैट कंपनी. ये फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है बिकॉज आई एम अ ओनर इन द कंपनी. व्हेन आई लुक एट डीमार्ट स्टोर, जब मैं शॉपिंग करने जाता हूं, आई फील आई ओन दिस कंपनी, आई ओन दिस फिजिकल प्लेस बिकॉज आई एम अ पार्ट ओनर इन दैट कंपनी. जब मैं टाटा स्टील को एक फिजिकल प्लांट देखता हूं, physical property, I feel yes, I own that company because I have a share of that company. The idea is, how do you look at equity market? Do you look at as only as a piece of paper, or do you look at as if कि I own these physical assets? अगर जब मैं obviously I also invest into international funds, I invest into US market funds, जहां पे जब मैं Google को देखता हूं, जो Amazon को देखता हूं, तो मैं Amazon की ऐप देखता हूं. Today you don't require physical assets. Today even digital assets basically belong to you. जब मैं Amazon की ऐप देखता हूँ, मुझे लगता है I also own Amazon because I'm a part owner in that company. So you have to change your perspective. Your perspective is very simple. When you have financial assets, ideally you are indirectly also holding physical assets. So ये जो obsession है ना कि मेरे पास physical assets होना चाहिए, it's a very bad obsession. In fact, the world is moving. People want all the physical assets, but in paper form. That's a more logical way of investing. सिमरन को ये बात तो अभी तक अच्छी लगी कि अच्छा, अगर मैं शेयर्स में खरीदती हूं तो बेसिकली ये सारी कंपनीज के फिजिकल एसेट्स मेरे हैं, आई एम अ पार्ट ओनर ऑफ इट. अब सिमरन ये भी जानना चाहती है कि इससे मेरा टैक्स कितना बचेगा, बिकॉज इंडियंस का एक और ऑब्सेशन है कि मेरा टैक्स बचना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी सेंसिटिव टू टैक्स. एवरी एसेट क्लास इज टैक्स.
ऐसा कोई भी एसेट क्लास नहीं है पूरी दुनिया में जो टैक्स नहीं होता. द ब्यूटी इज इक्विटी की टैक्सेशन इज द लोएस्ट. टुडे व्हेन यू बाय गोल्ड, द गोल्ड की टैक्सेशन इज 20% विद इंडेक्सेशन. जब आप एफडी में पैसा डालते हो, जो भी आपको ब्याज मिलता है उस पर आपकी इनकम में ऐड हो जाता है. अज्यूमिंग आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो तो 30% से ज्यादा टैक्स लग जाता है. रियल एस्टेट में जो भी आपको रेंट मिलता है आपकी इनकम में ऐड होता है, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है. द ब्यूटी ऑफ टिपिकली एन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज आपका जो लॉन्ग टर्म गेन होता है उस पर सिर्फ 10% कैपिटल गेन टैक्स है. लॉन्ग टर्म बेसिकली मीन्स एनीथिंग विच इज अबव 1 ईयर. सेकेंडली, जब आप पैसा विड्रॉ करते हो उसमें से, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सरकार ने, सेबी ने हमको दी है, एनी कैपिटल गेन अप टू 1 लाख, एक साल तक एनी कैपिटल गेन in a particular year is tax free. मतलब let's say if you put 50 lakh rupees into a mutual fund or a balance fund like a equity and bond fund DSP का, और आप पैसा विड्रॉ करते हो, आपका 1 लाख के नीचे जो भी कैपिटल गेन होगा ना उस पर आपको टैक्स भरना ही नहीं है. एनीथिंग विच इज ओवर एंड अबव 1 लाख कैपिटल गेन इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उसी के ऊपर यू हैव टू पे टैक्स. सो इफ यू लुक फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव, अगर आप you can enjoy the benefit of it. So basically your withdrawals attract very low taxes. You are enjoying practically tax-free returns in your withdrawals, and at the same time your capital is also appreciating. So it becomes a very good alternative to basically getting tax-free incomes up to 1 lakh in capital gain. Now I will just sum it up for you. बहुत सिंपल सी भाषा है. आपके पास दो ऑल्टरनेटिव हैं. या तो आप रेंट, आप एक प्रॉपर्टी खरीद लो जहां पे आपको रेंट मिलेगा, या आप इक्विटी एंड बॉन्ड फंड में डाल दो, एक बैलेंस फंड में 10 साल के होराइजन के प्लस. मैंने आपको 10 साल का उदाहरण दिया है. इसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइम होराइजन 10 ईयर्स होना चाहिए. आपका टाइम होराइजन शुड बी लाइक होम लोन और अ रियल एस्टेट. 10 साल इज बेयर मिनिमम. 15 साल, 20 साल, 25 साल, इफ दैट इज योर टाइम होराइजन, तो प्रॉपर्टी से तो आप कंपेयर करना ही मत, बिकॉज यू विल मेक गुड इनकम्स प्लस यू विल मेक गुड कैपिटल एप्रिसिएशन. बट लेट्स have a good comparison between both of them. Rents आपके taxable है. Withdrawals in mutual funds, technically आपका capital gain भी सिर्फ 10% है. At the same time आप monthly outflows करोगे, उसमें जो 1 लाख के अंडर capital gain होगा तो technically वो tax free हो जाता है. आपको घर खरीदते हो तो आपको operating cost, maintenance cost, visiting cost, change of owner, insurance, broker, बहुत सारी तकलीफ लगते हैं. यहाँ पे कुछ भी नहीं करना. आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड खरीदना है और जो भी कुछ होगा ऑटोमेटिक होगा. आपकी रियल एस्टेट वेकेंट जा सकते हैं. म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ इशू नहीं है. आपने एक बार सिस्टमैटिक विड्रॉल फॉर्म पे साइन कर दिया है, आपको विड्रॉल्स हर महीने मिलेंगे. लास्टली, आप रेंट्स एडजस्ट नहीं कर सकते. समझो आपको इनकम चाहिए, कभी आपको 20,000 चाहिए, कभी 30,000 चाहिए, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे. आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे थोड़े पैसे की जरूरत ज्यादा है, मुझे ज्यादा रेंट दो. प्लस आप अपना घर पार्शियली नहीं बेच सकते. म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत लग रही है, आप विड्रॉल्स बढ़ा लीजिए. आपको लगता है कि अभी आपको पैसे की शायद जरूरत कम है, आप अपने विड्रॉल्स कम कर लीजिए. आपको लगता है बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या लाइफ में कुछ चैलेंजेस आया है, पैसे की जरूरत है, आप पार्शियली रिडीम भी कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पार्शियली और कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. सो विड्रॉल फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इज द बिगेस्ट एडवांटेज along with other advantages which I told you. Now ये तो बात हो गई somebody who's in his 30s, 40s and 50s जो टिपिकली सोच रहा है कि मेरे को रियल एस्टेट में डालूं पैसा या म्यूचुअल फंड्स में डालूं, लाइक अ इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, लाइक अ बैलेंस फंड, टू गेट माय सेकंड इनकम. नाउ अभी बात करते हैं रिटायरमेंट की, बिकॉज रिटायरमेंट ऐसा एक फेस है जहां पे दे विल बी लीव आउट सेकंड इनकम. बेसिकली रिटायरमेंट कॉर्पस ही हमारा ओरिजिनल इनकम होगा, उसमें से वी वुड रिक्वायर income all our life. Retirement is technically a ticking time bomb in the country. मैं क्यों बोलता हूँ it's a ticking time bomb? Because India has started copying the world in terms of expenses. Like the world, the Western countries, we want to travel abroad, we want to buy all the best cars, have the best home decor and everything. But we forget something very interesting. In India is the only country where आपको अपने retirement का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा. You will not get technically any pension from the government, no healthcare benefit, no unemployment benefit. Technically there's no benefit. So आपको अपनी retirement का ख्याल खुद ही रखना है. Second point, this generation will see retirement and our previous generation has not seen it because हमारी life
बहुत लंबी होने वाली है। जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी ऑफ अस विल स्टे टिल द एज ऑफ 80, 85 एंड 90 ईयर्स। 20, 25, 30 साल का लंबा रिटायरमेंट होगा, एंड वी वांट स्टडी इनकम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। The biggest challenge which I have seen a lot of people investing into physical assets, वो क्या करते हैं, पूरी जिंदगी कमाते हैं, 2-3 घर में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब चैलेंज क्या है? The challenge will be explained through this picture. पानी की कीमत आपको रेगिस्तान में पता चलती है। क्यों? बिकॉज वहां पे एक एक बूंद मैटर करता है। आई नो सो मेनी क्लाइंट्स जिनके 3-3 प्रॉपर्टीज हैं, उनको रेंट मिल रहा है, पर उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। वो आज कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं, और जो भी रेंट मिल रहा है उसी में उनको अपना घर का गुजारा करना पड़ रहा है। लिक्विडिटी इज अ वेरी बिग चैलेंज व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। प्लस उन्होंने 3-4 जगहों पे प्रॉपर्टी खरीदी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज रियल एस्टेट एट दैट टाइम। What is the better alternative? The best alternative is to have your money into equity mutual funds, debt mutual funds, balance fund, and a combination of various assets, and then withdraw money in the form of systematic withdrawal plan. The systematic withdrawal plan ko, if I have to give you a different word to it, I will call it a reverse SIP. Why I say reverse SIP? Because in SIP you save on a monthly basis and you are trying to build a corpus. इन रिवर्स एसआईपी आप क्या करते हो, आपका कॉर्पस बन गया है, अब उस कॉर्पस में से आपने नलका ऑन कर दिया है, और बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, मे बी 1%, 2%, 3%, 4% ऑफ योर कॉर्पस, आप हर महीने उसको विड्रॉ कर रहे हो टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। इट्स अ रिवर्स एसआईपी। कितना पैसा चाहिए आप खुद डिसाइड कीजिए, नलका का टैप का फ्लो ऑन करके, व्हाट इज द कॉर्पस विच यू रिक्वायर। नाउ जनरली पीपल से व्हाट इज द कॉर्पस विच आई शुड यूज, हर महीने कितना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करूं। इसमें एवरी रिटायरमेंट स्टोरी इज वेरी डिफरेंट, एवरीबडीज गोल्स आर वेरी डिफरेंट, एवरीबडीज स्टोरी इज वेरी डिफरेंट। हर एक की रिक्वायरमेंट, हर एक की लाइफ गोल्स, हर एक की चैलेंजेस, हर एक का हेल्थ, हर एक की इनसिक्योरिटीज, हर एक का बच्चे कैसे कर रहे हैं, हर एक के सर्कमस्टांसेस कैसे, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। सो टेक्निकली हाउ मच यू हैव टू विड्रॉ, you will have to speak to your distributor, your partner, and your advisor. He will understand all your entire story. वो आपकी पूरी स्टोरी समझेगा, आपकी लाइफ समझेगा, आपकी इनसिक्योरिटी समझेगा, ये समझेगा कि आपको क्या बातें रात को सताती हैं, ओके, किस चीजों की वजह से आपको रात को नींद नहीं आती। बेस्ड ऑन दैट ही विल अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल गोल्स, एंड देन ही विल डिसाइड बेसिकली योर एसेट एलोकेशन बिटवीन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम जिसको डेट बोला जाता है, थोड़ा बहुत गोल्ड and balance fund, and design a strategy, design a pension plan for you, जहां पे आपको घर बैठे बैठे आराम से हर महीने मंथली पेंशन मिलती जाएगी। तो वो मंथली पेंशन ऐसी होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो वो मंथली पेंशन बढ़ा भी सकते हैं, रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी दे कैन ऑल्सो रिड्यूस योर मंथली पेंशन। इट्स द मोस्ट फ्लेक्सिबल वे ऑफ गेटिंग योर मंथली पेंशन। I have seen for my personal examples, even for my family examples, the biggest problems or the fights which happen in the family is predominantly because of real estate. It's very difficult to pass on real estate also to the next generation because it is a physical asset. The best and the logical way to pass on the wealth so that there is no dispute among family members is to pass it through the way of mutual funds. Mutual funds, a will and a nominee is a very classic, simple, डेडली कॉम्बिनेशन, जहां पे आपने विल भी बना ली है, आपके म्यूचुअल फंड्स एसेट्स में है, आइडली यू हैव अ गुड नॉमिनी, यू हैव मेंशन्ड योर नॉमिनीज, एंड टेक्निकली इट्स आल्सो द इजीएस्ट वे टू पास ऑन द हार्ड अर्न मनी, द वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन. So use mutual funds in a most logical way. Use mutual funds ideally as a very systematic way to actually have a second income. अगर आप 30 साल की हो, 40 साल की हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर रेंटल इनकम, a balance fund can be a very good alternative to get second income all your life. And if you are you are retired, build a corpus of having equity mutual funds, balance fund, debt funds, little bit of gold into your portfolio. This can actually give you pension all your life using a systematic withdrawal plan. It's very simple. Ideally, all you have to do is talk to your distributor, your partner, and put this in practice. Over here, I will just end up with very one important point. When we look at equity market, unfortunately, when we look at CNBC, Money Control, and various websites and newspapers,
वी थिंक दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। रोज सुबह उठ के स्टॉक मार्केट को देखना, इसको इक्विटी बोलते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड एज इक्विटी, दैट इज कॉल्ड एज basically a lack of better word, I would say that is called as gambling. Equity market means investing into businesses. Just try to understand. A lot of people, I would say majority of the people, get up in the morning and the first thing what they do is look at the stock market prices. They look at the Sensex, they look at the Nifty, they look at the portfolio, and they think they are very smart, they are very intelligent. But when they buy real estate, let's say if I buy this new property and every day I go to the broker or the distributor or a dealer and ask him, ये मेरे property का price आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? And I daily I'm checking with him. You know what the society will tell me? Society will tell me, Amit, I think you have got mad. आपको दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है, आप एक डॉक्टर के पास जाओ, रोज जाके आप अपने रियल एस्टेट का प्राइस क्यों देखते हो? बट इक्विटी मार्केट में रोज प्राइस चेक करने को इंटेलिजेंस माना जाता है। Ideally, you create wealth not by monitoring your portfolio. You create wealth by not doing anything. अगर आपको रियल एस्टेट से बेटर रिटर्न्स चाहिए लॉन्ग टर्म में, यूज अ बैलेंस फंड एंड ट्रीट अ बैलेंस फंड लाइक रियल एस्टेट। किस तरीके से हम रियल एस्टेट के प्राइसेस पूछते ही नहीं है किसी से और उसको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए रखते हैं फेथ के ऊपर, उसी तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड को रखिए 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए फेथ के ऊपर। आई ऑल्सो सी जब भी घर पे पूजा होती है या हम कोई सेरेमनी करते हैं तो हम रियल एस्टेट को पूछते हैं। द प्रॉब्लम इज इक्विटी को हम एक सट्टा बाजार की तरह समझते हैं। द डे वी इवन स्टार्ट रिस्पेक्टिंग म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बैलेंस फंड एंड डेट फंड्स, लाइक हाउ वी रिस्पेक्ट गोल्ड एंड फिजिकल एसेट्स, किस तरीके से हम उनको प्रे करते हैं लक्ष्मी पूजा में एंड वेरियस थिंग्स विच वी डू इन आवर लाइफ, इन द सिमिलर फैशन वी ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आई एम वेरी श्योर आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका टाइम होराइजन चेंज होगा। आप फिर भी सोचोगे कि मुझे अखबार पढ़ना, जो नॉइज चल रही है उसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत इच्छा होती है। अनफॉर्चुनेटली उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जो भी आप अखबार में आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, वेदर इट्स अ न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन और एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, दिस इंफॉर्मेशन हैज अ एक्सपायरी पीरियड। ये इंफॉर्मेशन 5 दिन 15 दिन 20 दिन में खत्म हो जाएगी। आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल 15 साल 20 साल और 30 साल के लिए, ये इंफॉर्मेशन क्या मैटर करती है आपको कि अभी इलेक्शन में क्या हो रहा है, अभी बजट में क्या हो रहा है, अभी कोविड केसेस क्या हो रहे हैं, अभी अर्निंग्स क्या हो रही है। आपका होराइजन 15-20 साल का है और आप ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो जो आज रेलिवेंट है भी नहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। द मोमेंट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू यूज बैलेंस फंड एज एन ऑल्टरनेटिव टू रियल एस्टेट, आपको रेंटल इनकम से मिलेगी, अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू रेंटल इनकम। योर कैपिटल विल ऑल्सो ग्रो और आपको घर बैठे बैठे कहीं जाने के बिना टैक्स फ्री टैक्स एफिशिएंट वे से आपको अच्छी इनकम भी मिलेंगे, प्लस कैपिटल एप्रिशिएट भी होगा। एंड एट द सेम टाइम यूजिंग सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान you can design your pension in a more logical way. With this, I will end the session and I'm happy to answer all the questions. Thank you. Thank you, Amit. It was a very insightful session और बहुत ही पावर पैक्ड प्रेजेंटेशन था आपका। बहुत मज़ा आया मुझे सुनने में, और हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिला है सर आज के सेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे हैं, काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, बट मैं मेन क्वेश्चंस अभी आपसे पूछूंगी जो इन्वेस्टर्स ने पूछे हैं, राइट? सो आई स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पूछा है वो ये है कि आपने अभी जैसे SWP ऑप्शन के बारे में बात करी, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक डिविडेंड ऑप्शन भी होता है इनकम के लिए। सो हाउ डू यू कंपेयर बोथ दीज ऑप्शंस, SWP विथ डिविडेंड ऑप्शन, एंड व्हिच वन अकॉर्डिंग टू यू वुड बी बेटर? सी, डिविडेंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ करता था एट अ टाइम व्हेन डिविडेंड्स वर टैक्स फ्री। Today, dividends are not tax free. That's the first point. Second point is, in dividends, the dividend date is decided and the dividend quantum is decided by the mutual fund. There will be periods where we will give dividends and there will be periods where we will not give dividends. Now the point is, why at the end of the day it's your money. What is systematic withdrawal plan? Let's say there is a well of water over there,
how much water you want to remove from the well depends from person to person. Somebody would require 3 bottles of water, somebody would require 5 bottles of water, somebody would require 10 bottles of water. So, how much you want to withdraw, why you want somebody else to decide for you, which is also not tax efficient. You decide how much withdrawal do you want. Let's say if I'm 60, okay, and initial period, maybe I want very less withdrawal. I might just withdraw 30,000 rupees per month. Maybe over a period of time, I would require 50,000 rupees per month. The beauty of systematic withdrawal plan is that it gives me complete freedom of how much I want to withdraw because it's my corpus. It's like SIP. आज आई नो पीपल जो 5,000 की SIP भी करते हैं, 10,000 की भी करते हैं, 20,000 की भी करते हैं, 1 लाख की भी करते हैं. आई नो इन्वेस्टर जो 10 लाख को 1 करोड़ की SIP भी करते हैं. The beauty of SIP is that how much you earn, you decide the SIP amount based on how much your earning is. Similarly, in withdrawal, you decide based on what is your requirement, based on your maths, आपको कितना withdraw करना है. So systematic withdrawal plan gives you entire freedom. And that's why I call it a reverse SIP. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो अपना आया है वो भी काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पूछा है, एंड दैट इज़ अबाउट द करंट मार्केट सिनेरियो. मतलब पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रही हैं पिछले स्पेशली 1 महीने के अंदर. तो इस मार्केट सिचुएशन में भी आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे? Yes. See, the beauty is आप कभी भी मतलब ये तो we are just talking about last 1 year volatility. आप लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का स्टॉक मार्केट डेटा देख लीजिए. आप इंडिया, लीव इंडिया, आप अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, you go to any part of the world and you look at data. Market was volatile, market is volatile, and markets will always be volatile. That's the nature of equity market. Market ऊपर जाना नीचे जाना दिल की धड़कन की तरह है. जिस दिन मार्केट ऊपर नीचे जाना बंद कर देगी ना, जिस दिन इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाएगा, इंसान मर जाएगा. उसी तरीके से मार्केट अगर ऊपर नीचे जाना बंद कर देगी तो समझो मार्केट खत्म हो गई. मार्केट सिर्फ हफ्ते में 2 दिन वोलेटाइल नहीं होती, which is Saturday and a Sunday, because the market is closed. Otherwise, markets will always be volatile. That's first. Second is, you are investing from a 10-year plus perspective, and you are taking decision based on information which is available to you, जिसकी expiry period 10 days, 15 days में खत्म हो जाएगी. I'll again repeat, what is equity investment? Equity investment means investing into businesses. If your premise is that businesses will end in the country, then don't invest into equity market. Equity means investing into businesses. Businesses always create wealth. That's a law of the land. Businesses will always create wealth. The second law of the land is not all businesses will create wealth. That's why you have to diversify. So as long as you understand that businessman is making money, I also want to be like a business person, then why don't I also invest into equity market, give it to a professional equity mutual fund manager, and stay invested for a 10-year, 15-year, 20-year perspective. एक और मिस्टेक चुनौती जो हम लोग करते हैं, जब भी आप बैंक मैनेजर के पास जाते हो, आप ये डिस्कस नहीं करते सर आरबीआई पॉलिसी क्या बोल रही है, ओके, व्हाट इज द इन्फ्लेशन लेवल हैपनिंग इन द कंट्री, सो व्हाट डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट विल डू. आप चुपचाप जाके बैंक एफडी बना देते हो, राइट? When you go to a jeweler, when you buy gold, have you ever seen a woman talking, what is your view on currency? Because currency plays a very big role in buying gold. Nobody says, what is your view on currency? What is your view on, I've heard China is buying gold or Russia is selling gold. Do you talk about all these things? No. A woman investor is very logical. She buys gold on faith. She goes to a jeweler. She makes her ornaments. She buys jewelry and she keeps it for generations. Now, the only problem is, equity market is investing into businesses, as simple as that. Unfortunately, we bring all the complexity, macroeconomics, Fed rate, RBI interest rate, money printing. These is all information. These are macroeconomic topics. It has got nothing to do with equity investment. Unfortunately, we are complicating it. Just keep it simple. Invest into equity mutual funds from a long-term perspective. You will create wealth. If you like all this information, all this knowledge, you will not create wealth. थैंक यू अमित. ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पूछा था, बहुत लोगों को मार्केट की चिंता थी, तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने. एक थर्ड क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपने कवर किया भी है अपने स्लाइड्स में, थोड़ा टैक्स के बारे में आप वापस से बताएंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन किस तरीके से आता है? Okay,
So the beauty is, first of all, understand that any asset class which we invest into, we have to pay tax. ऐसा कोई भी asset class नहीं है जहाँ पे tax नहीं है. The beauty is mutual fund में, equity mutual fund में taxation is the lowest. So equity में, as per SEBI's classification, less than 1 year is called short term, more than 1 year is called as long term. Just because more than 1 year is called long term, people think that investing into equity mutual fund more than 1 year is called long term. No, that's only from a tax perspective. Your horizon should be 10 years, 15 years, 20 years, 30 years plus. That's your time horizon. Now, anything which is above 1 year, whatever profit what you make, whatever capital gains you make, उस पे 10% कैपिटल गेन टैक्स होता है. बट सरकार ने 1 लाख रुपए तक एक बेनिफिट दिया हुआ है. एनी कैपिटल गेन in 1 year up to 1 lakh rupee is tax free. Any capital gain above 1 year in a year, उसके ऊपर आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल चुनौती, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 12 लाख रुपए, तो आपका कैपिटल गेन हुआ इज 2 लाख रुपीज. लेट्स से इफ यू रिडीम इट, जस्ट से इफ यू रिक्वायर्ड मनी, you redeemed it, what is the profit which you made? 2 lakh. The capital gain what you had was 2 lakh. On 1 lakh capital gain, there is no taxation. Only on the remaining 1 lakh capital gain, you have to pay a 10% tax. So 10% over 1 lakh is equal to 10,000 rupees tax which you have to pay. So technically, that's how taxation of an equity mutual fund works. Balance fund comes typically into equity taxation because any fund which has more than 65% into domestic equity will have equity taxation. I told you about DSP equity and bond fund, which is a balance fund. उसमें 75% equity है, 35% debt है. So from a taxation perspective, it comes into equity taxation, which is very favorable. राइट. अमित, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा ऑफ में जाएगा ये कि भाई बैलेंस्ड फंड विद एसडब्ल्यूपी ऑप्शन, यानी हम लमसम इन्वेस्ट करके उसको विड्रॉ करें. तो कुछ लोगों का सवाल ये है कि अगर वो एसआईपी मोड से बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो वुड यू रिकमेंड इट कंपेयर्ड टू अ प्योर इक्विटी फंड? See, see, what I'm giving you is solutions. The solution which I told you about lump sum is with comparing it to a real estate. So today, Chunauti, let's say if you have 50 lakh rupees and you are thinking, should I buy a house to get rental income, or should I put into a balance fund so that I get income in the form of systematic withdrawal plan and also have capital appreciation? Which alternative I should look at? I was telling you, in your case, you should look at a balance fund and have a systematic withdrawal plan. You will get capital appreciation also, and you will also get regular income. I was just comparing real estate versus investing into a balance fund. Now your point is very interesting. Should I do an SIP into a balance fund if I have to create wealth from a long-term perspective? And the answer is yes. Your core portfolio in equity should be balance fund, flexi cap fund. This should be a core portfolio, because balance fund में क्या होता है, 25% debt होता है. The advantage of 25% debt is that when markets correct, it absorbs your volatility, and when market goes up, it gives you capital appreciation. It's like बोलते हैं ना, गाड़ी में एक shock absorber भी important होता है. So 25% debt helps you as a shock absorber. जब मार्केट गिरती है like a 10%, 15%, 20%, उस समय आपका fall 25% से कम हो जाता है, because you have a balance fund component which is debt component. और जब मार्केट बढ़ रही होती है तो it also helps you in your capital appreciation. So yes, if you're doing a SIP in a balance fund for creating wealth, it's an amazing option. It helps you create wealth, plus थोड़ी volatility कम भी कर देता है as compared to a pure equity fund. राइट. ओके, सो एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक इन्वेस्टर ने पूछा है दैट क्या वो पूरी लाइफ अगर रेंट पे रहें और जितना भी पैसा उनका बचता है वो रेंट पे करके बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दें, तो हाउ डू यू थिंक ये डिसीजन रहेगा फाइनेंशियली? देखो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ पर्सनल फाइनेंस. ये मैथ्स की तरह नहीं है 1+1=2. मेरे बेटे के एग्जाम चल रहे हैं, और जब भी मैं उसको मैथ्स का प्रॉब्लम देता हूँ ना, तो अगर आंसर थोड़ा भी दूर होता है तो मैं आंसर लिखता हूँ रॉन्ग, बिकॉज मैथ्स में आंसर प्रिसाइज होना चाहिए. द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज दैट नो आंसर इज राइट. Everything depends upon your situations. I'll give you a very classic example. The world is changing, and we know the world is changing at an exponential pace. आज जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, 20 साल पहले ये सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती नहीं थी. टुडे, पुराने जमाने में क्या होता था, इफ आई लुक एट माय डैड्स करियर,
ऑल हिज लाइफ ही हैज बीन इन बॉम्बे बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उन्होंने 20-20 साल 10 साल एक ही जगह पे काम करते थे. Now, people, we all know there are so many smart cities happening in the country. Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Gujarat mein hi, there are so many smart cities coming over there. Maharashtra mein there are so many cities. The beauty is where you will work is a question mark. Whether you will work in India or whether you will work, there are a lot of IT people, okay, whether they will work abroad, it's also a question mark. Where life takes you is a question mark. The beauty is with rent, it gives you a lot of flexibility. Even in the city of Bombay, it takes 2 hours to commute. Everybody would like to stay in a place जहाँ पे office नजदीक हो. The beauty of rent is that it gives you wings, it gives you flexibility. And I'll tell you the main reason why majority of the Indians buy real estate. The reason majority of the Indians buy real estate is because of society pressure. Because parents, relatives, your in-laws, your friends, your family members always keep on asking you, यार अभी तक घर नहीं लिया, अभी तक घर नहीं लिया, घर कब ले रहा है? Unfortunately, because of society pressure, in spite of knowing कि मुझे घर की जरूरत नहीं है, we end up buying because society कह रही है. और ये सोसाइटी प्रेशर आपको हमेशा डालेगी. आपको याद होगा, इफ यू जस्ट रिवाइंड बैक लाइफ ऑल्सो, पेरेंट्स और रिलेटिव सब लोग सोसाइटी पूछते थे, अच्छा क्या कर रहा है, इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, एंड वी एंड अप डूइंग थिंग्स व्हिच वी डोंट लाइक बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु बाय रियल एस्टेट ओनली फॉर सोसाइटी प्रेशर. If in case you can keep that society pressure aside, and also from a psychological reason, a lot of people feel घर होना चाहिए, कुछ होना हो, एक छत होनी चाहिए. If you understand, at the end of the day, it's just an asset, a place to stay. My money, which will actually help me, is basically that equity mutual fund, which will create wealth. If you can explain your mind about it, it's a very good decision. अगर आप explain नहीं कर पा रहे, एक छोटा सा घर खरीद लो और बाकी जो पैसा है उसको SIP करो wealth creation के लिए. So I'm not saying whether this is good or bad, but if you can explain your mind, well and good. If you can't explain it, it's still not bad, but have a combination of both. But just don't invest all your money into real estate. That's a sin. मतलब वो आपको ideally financial problems होंगी उस वजह से. थैंक यू अमित. आई थिंक मैंने मेजरली क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. कुछ क्या, इनफैक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आ रहे हैं, जैसे कि अगर हमें 25,000 रुपये महीना चाहिए तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर मेरे को 50,000 महीना चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास 1 करोड़ है तो कितना मेरे को महीने का आएगा, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए. इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने पास आ रहे हैं. So, चुनौती, मैं आपको मतलब ऑब्वियसली आंसर दे नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको 2 चीजों के आंसर मैं आपको मेरे सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा. I do a lot of sessions, practically one session every day, and one question which everybody asks, what is the market view? And I think it's a public platform. इतने सारे लोग हैं, मैं एक मार्केट व्यू दे देता हूँ और ये मेरा आंसर कंसिस्टेंट रहता है. मेरा मार्केट व्यू ये है, मुझे नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता. क्यों मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता? बिकॉज मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. दैट्स द बॉटम लाइन. बिकॉज मार्केट इन शॉर्ट टर्म वर्क्स ऑन सेंटिमेंट्स, but I'm very sure markets in long term creates wealth. Data shows it. Even in India, across the world, equity beats all asset classes. It makes returns higher than inflation. So obviously, in the long term, you create wealth. Now your second point is, typically, if I'm retired, how much should I withdraw? देखो, इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, but generally it is a rule which is called as 4% of your corpus is something which ideally you can withdraw. 4%, let's say if your corpus is 1 crore rupees, 4% of that, which is 4 lakh rupees, 4 lakh rupees over a period of 12 months डिवाइड कर लीजिए, 30,000 रुपए आता है, तो 30,000 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो ऑन अ 1 करोड़ कॉर्पस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओके. बट आइडियली यू माइट से मुझे 30,000 की शायद जरूरत है भी नहीं, मुझे सिर्फ 20,000 रुपए की जरूरत है. तो इसलिए नहीं, बिकॉज 30,000 विड्रॉ कर सकते हो तो आप सिर्फ 30,000 कीजिए, आप 20,000 कीजिए या 15,000 कीजिए. बट जब जरूरत लगेगी तो मे बी यू कैन विड्रॉ 35 और 40. बट आइडली 4% ऑफ योर कॉर्पस इज अ डिसेंट रन रेट जहां पे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल. एंड दिस कम्स विद लॉट ऑफ असम्पशंस आल्सो. सम ऑफ योर मनी शुड बी इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, some should be into debt mutual funds, some should be into balanced mutual funds. It comes with that assumption also. But if all your money is into debt, which is safe, then 4% might be a very tough task. Then maybe you have to withdraw maybe like a 2% or a 2.5%. Right.
थैंक यू सो मच अमित। सो जैसे कि इन्वेस्टर्स का मैंने देखा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं लास्ट बस इतना कहना चाहूँगी कि आपके एडवाइजर्स ने, जिन्होंने पार्टनर्स ने, जिन्होंने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनसे बात कीजिए। आपका हर एक की ज़रूरत अलग होती है, हर एक की इनकम लेवल्स, बैकग्राउंड, हर एक चीज़ अलग होती है। तो एक बार अपने एडवाइज़र के साथ डिस्कस करिए, राइट? वो आपको एकदम सही सजेशन देंगे। उनके पास एनजे की एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है उनके साथ जो खड़ी है। कल इनफैक्ट वीकेंड है, एक अच्छा दिन भी है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अपनी इनकम प्लानिंग उनके साथ कर सकते हैं। सो दे आर वेल इक्विप्ड विथ अ लॉट ऑफ टूल्स एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम। सो या थैंक यू सो मच अमित। बहुत मज़ा आया मुझे आज के सेशन में और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपने यूज़ किए। एंड ये सेम फीडबैक अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कितने सारे लोगों ने आपको थैंक यू एंड अप्रिशिएट किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अमित एंड हैव अ Thank you, ग्रेट Chunoti. वीकेंड। Thank you, partners. Thank you, clients. Have a great weekend. Thank you. Happy investing. थैंक यू।